Hello, friends. Now, let us start our next definition. Very interesting. Purchase. Purchase. See, friends, you are familiar with this word. हम बार बार बोलते ये परचेज करना है, ये लेना है, In the terms of accountancy, purchase word used for goods only. If you buy goods for selling purpose, then it is called purchase. If you purchase goods, definitely you will sell them. A trader deals with the commodities. They buy and they sell. So, purchase means the things we buy, the goods we buy for selling purpose. But keep in your mind, dear friends, if you purchase assets, means if you purchase property like furniture, like machinery, like laptop, like mobile for business use, those assets you will not sell. Then, if you buy furniture, you cannot say purchase. Then you should write the name of the asset, like furniture account, like machinery account, like computer account. But purchase word used for goods only. It's a very interesting. Keep in your mind, in accountancy, this is the right meaning of purchase. So don't mix purchase of furniture, purchase of goods. You cannot club. Mix नहीं करना है आपको. समझ में आ गया? So purchase word is used for only goods, and जो ये goods है ना, वही हम बेचेंगे. We will not sell furniture. Clear? Okay. Now, there are two types of purchase. One is a cash purchase. Second is credit purchase. फिर से बता दूं, कैश परचेस में क्या होता है? When you buy the goods, you pay money on the spot. Right? So, जो ट्रेडर है ना, होलसेलर, वो आपको एक बिल देगा और उनका नाम होगा कैश मेमो. मेमो मतलब बिल. आप कहीं से भी कैश में जो परचेस करोगे ना, तो जो बिल देगा ना वो सेलर, वो लिखेगा कैश मेमो. मतलब आपने जो गुड्स लिया है वो कैश दे के लिया है. You are paying on the spot. That is called cash purchase. Now, credit purchase. कभी ऐसा भी होता है, you might have purchased goods in bulk. You are having a little amount. You pay little amount. Rest of the amount you pay in future. या तो पूरी अमाउंट आप नहीं देते हो on the spot. That is called credit purchase. For example, if you purchase goods of 2 lakhs from Raj, और आप राज को बोलते हो कि राज मैं 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद पैसा दे दूंगा, इट मीन्स दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अगर आपकी इंप्रेशन मार्केट में अच्छी है तो ही ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है. तो जो ट्रेडर आपको बिल देगा, ट्रेडर आपको जो बिल देगा, वो बिल का नाम होगा क्रेडिट मेमो. मेमो मतलब बिल, क्रेडिट मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन किया है
वो क्रेडिट में किया है, मतलब आपने उधारी में गुड्स परचेज किया है. इट मीन्स यू विल पे द अमाउंट इन फ्यूचर. क्लियर फ्रेंड्स? द नेक्स्ट डेफिनेशन इज परचेज रिटर्न. सी, लुकिंग टू दिस वर्ड, ये नाम देख के ही आपको पता चल जाएगा, नाम देख के ही पता चल जाएगा इनका मीनिंग. परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न मीन्स गुड्स रिटर्न टू सेलर. गुड्स रिटर्न टू सेलर. अगर आपने जो भी गुड्स परचेज किया है वो जो सेलर है उनको आप रिटर्न करते हो. आपको डाउट लगेगा, सर रिटर्न क्यों करेंगे हम? आप भी सोचो, क्यों रिटर्न करेंगे? वाई टू रिटर्न द गुड्स टू द सेलर? मे बी नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल. नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल. दिखाया था कुछ और दिया कुछ और. सेकेंड, मे बी डिफेक्टिव, मे बी डैमेज. राइट? समटाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि मे बी एक्सपायर्ड गुड्स आर, डेट इज एक्सपायर्ड. so many reasons are there, and the goods we return to the seller. लोग उसे कहते हैं परचेज रिटर्न. इन अकाउंटेंसी द अदर नेम ऑफ परचेज रिटर्न इज, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है. अदर नेम ऑफ परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड. गुड्स चला गया, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड. नेक्स्ट फ्रेंड्स, डेफिनेशन इज सेल्स. Friends, this is another most familiar word, sales. See, generally the terms in accountancy is what? The goods given to the customer. Goods given to the customer are called sales. या तो selling of goods to customers, इट इज ऑल्सो सेल्स. जो चीज हम परचेज करते उनमें थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके हम कस्टमर को देते, दैट इज सेल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. नंबर वन इज कैश सेल्स, सेकेंड इज अ क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स में क्या होता है? कस्टमर पेज money on the spot. They pay on the spot. Credit sales में क्या होता है? We sell the goods on credit means what? Customer will pay money in future. Customer will pay money in future. That is called credit sales. Okay. Next definition is sales return. Friends, the goods which we have sold to the customer, they return to us. जैसा कि परचेज रिटर्न हमने समझाया था, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, गुड्स मे बी डिफेक्टिव, सो कस्टमर रिटर्न टू अस, राइट? दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न. यहां पे ना ऐसा भी आप बोल सकते हो कि कभी हमने गुड्स किसी को बेचा है, दे आर द परचेजर, दे आर द परचेजर, दे रिटर्न गुड्स टू अस. क्यों रिटर्न करेगा वो आपको पता है? मे बी डिफेक्टिव, मे बी नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, किसी वजह से वो रिटर्न करता है. दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न. अदर नेम ऑफ सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड मतलब गुड्स वापस आता है. क्लियर फ्रेंड्स? सो सेल्स रिटर्न मीन्स गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर.
फ्रेंड्स, मुझे ना एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको देना है। अगर मान लो कोई एक स्कीम है, अमेजोन वाले ने दिए, यू गिवन ऑर्डर फॉर अ सुपर मोबाइल। सो अमेजोन कंपनी इज अ सेलर, वी आर द बायर, राइट। सो जैसे ही मोबाइल आपने ओपन किया, मे बी इट्स डिफेक्टिव, नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन। सो जो मोबाइल आपने परचेज किया था अमेजोन से, दैट यू विल रिटर्न। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो, दे आर वेरी गुड, पिकअप भी कर लेता है फ्री में। सो दैट मोबाइल वी आर रिटर्निंग टू अमेजोन, सो इट इज परचेज रिटर्न फॉर अस। और उन लोगों के लिए क्या होगा? सेल्स रिटर्न। Clear? Friends, next definition is stock. Stock means what? चलो मुझे एक चीज बताओ। When a businessman purchase the goods for selling purpose, ऐसा भी हो सकता है all those purchased goods may not be sold out during the year. हो सकता है ना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। सो गुड्स रिमेन्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड स्टॉक। फिर से बताता हूं, जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं, वी ट्राई टू सेल एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जो भी गुड्स हमने परचेज किया है, this may not be sold out. So some goods remains in the godown, या तो in the shop, उसे लोग कहते हैं stock. Okay friends, now there are two types of stock. One is a closing stock. Friends, at the end of the accounting year, समझो ये अकाउंटेंसी का वर्ड है। सो लिसन केयरफुली, अकाउंटिंग ईयर मीन्स यहां पे जो इंडिया में ना 1/4 से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इट वॉज अर्लियर, नो, इट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया देशी नामा सिस्टम। बोलते थे कि कार्तिक सुद एकम से शुरू होता था और आसोवद अमास को खत्म होता था। वो बहुत पुराने जमाने की बात है। नाउ इन ए डेज अवर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स विथ फ्रॉम 1st April ends on 31st March. So during this year, some of the goods remains in the godown या तो in the shop which are unsold, that is called stock. जो यहाँ पे ये डेट पे end of the year जो स्टॉक रहता है ना, उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट डे बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। सो स्टॉक इज देयर, बट दिस इज क्लोजिंग बिकॉज इट इज एंड ऑफ द ईयर, राइट। एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जो भी स्टॉक हमारे पास होता है ना, उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और वही स्टॉक नेक्स्ट डे बन जाता है। नेक्स्ट डे मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। फॉर एग्जाम्पल, चलो अपना अकाउंटिंग ईयर ये 1/4 ड्यूरिंग दिस ईयर, यहां पे मेरे पास स्टॉक है सपोज 7 lakhs का, तो ये होता है अपना क्लोजिंग स्टॉक। और 1/4/20 को वही स्टॉक बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। क्लियर फ्रेंड्स?